ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ। ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੈਂਗ ਦੀ ਸਰਗਨਾ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਹਿਲੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਸਰਗਨਾ ਕਾਜਲ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੱਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਨਾ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਪਿਸਤੌਲ, 5 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 14 ਰੌਂਦ ਕਾਰਤੂਸ 32 ਬੋਰ ਅਤੇ 6 ਰੌਂਦ ਕਾਰਤੂਸ 30 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਅਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਹਿਲੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਰਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे आप सभी को मालूम है, पिछले 2-2.5 महीने में जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तरन तारण, अमृतसर रूरल, अमृतसर सिटी एंड बटाला, इनमें कुछ व्हीकल स्नैचिंग प्लस बैंक डकैती की वारदात कंटिन्यूस हुई है, एक के बाद एक। तो ये कुछ दो वारदात तरन तारण में हुई हैं, 5 अमृतसर रूरल में हुई है, जिसमें एक अटेम्प्ट था, एक बटाला में हुई है। तो 18 तारीख के बाद जब मैंने ज्वाइन किया था तो वी आर वर्किंग ऑन द लीड्स कि कौन हो सकते हैं। तो 16 तारीख को हमने एक जो हमारे टेक्निकल सेल और टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे राकेश कुमार विक्की अरेस्ट किया था 16 तारीख को। फर्दर उसके बेसिस पर हमने कल मॉर्निंग में तरन तारण से 2 अक्यूज और अरेस्ट किए और उनके अरेस्ट के बाद कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गैंग जो ऑपरेट कर रहा है इस एरिया में, उन्होंने कल भी वारदात करनी है जंडियाला एरिया में, तो वहाँ इकट्ठे होना था। तो वहाँ हमने ट्रैप लगाया और हमारी टीम्स से ये इंचार्ज, पीओ स्टाफ, एसएचओ टाटीविंड और भी टीम्स हमने लगाई हुई थी। तो वहाँ हमारा आमना सामना हुआ, इनफैक्ट एनकाउंटर भी हुआ। तो वहाँ पर 3 और इसमें जो मास्टरमाइंड थे, इनके कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और काजल, ये अरेस्ट हुए। तो टोटली एक गैंग 8 मेंबर का गैंग है ये, और ये कंटिन्यूसली वारदात कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरिया में। अरेस्ट होने के बाद इनसे रिकवरी भी हुई है। जो तरन तारण में रिसेंटली 19 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले जो वारदात हुई थी, वो भी ट्रेस हो गई है। उसमें अराउंड हमें 28 लाख रुपए इनसे मिले हैं, 4 पिस्टल मिली है, और जो अलग अलग बैंक गार्डों से इन्होंने जो राइफल्स लूटी थी उसमें हमने 5 रिकवर कर ली। इसके अलावा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मोस्टली इनका मतलब सभी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी ना किसी पर्चे हैं।
कुलविंदर सिंह पर 11 पर्चे हैं पुराने, 4 गुरप्रीत पर हैं, और जो मेन इनके एसोसिएट काजल, मतलब ये भी काफ़ी शातिर है, और इसी की शय पर सारा ये चल रही थी जो डकैती हो रही थी। काजल जो किंगपिन है मेन, काजल, गुरप्रीत और कुलविंदर, ये तीनों मास्टरमाइंड हैं। इसकी एज कितनी? काजल लड़की? हाँ, काजल लड़की, अराउंड 30 ईयर्स। सर ये एक बलकरा में भी हुआ था बैंक डकैती, सर भी आपके साथ खड़े, ये भी इन्होंने की? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, 18 तारीख के बाद हमारे 4 डकैती हुई, एक अटेम्प्ट हुई थी, वो पांचों ये गैंग ने की। ये बैंकिंग को निशाना बनाते थे, हो सकता है कोई और दुकानों की यूज की जा सकती है। एक्चुअली बैंक्स में मोस्टली तो दिमाग में इनका ये था कि पैसा ज़्यादा मिल जाना, और जो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि रैंडमली कोई बैंक सेलेक्ट कर लेते, जहाँ भी गार्ड अलर्ट नहीं होता या पुलिस का मतलब वहाँ पर अगर गश्त नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर लेते थे। तो मतलब पहले रेकी करते थे, वो मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे अगर गार्ड अलर्ट नहीं है, सपोज कोई बाहर चला गया, गार्ड नहीं है वहाँ पर, दे विल टारगेट दैट। इनिशियली 1-2 घंटा रेकी करते थे, मोस्टली 3 बजे के बाद ही वारदात करते थे, जब बैंक्स में रश भी कम होता था। ये कब से सर ये क्राइम कर रहे हैं ये लोग? क्रिमिनल बैकग्राउंड तो काफ़ी पुराना है। कुलविंदर, गुरप्रीत पे मैं बताया 11 पर्चे, एक पर 4 पर्चे हैं, पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं, ड्रग्स के भी पर्चे इनके ऊपर। लेकिन जो बैंक डकैती का तो पिछले 2-2.5 महीने से पूरे बॉर्डर एरिया में कर ही रहे। और भी कुछ है पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे कई इन्होंने एटीएम भी कई जगह से गाड़ी लगाई और हाँ, इन्होंने 2 गाड़ी स्नैच की हैं, एक कत्थू नंगल से की थी, एक सिटी अमृतसर कमिश्नरेट से की थी। तो एक I-20 जो रिकवर हुई, एक तो हमारी मतलब कत्थू नंगल की स्नैच की हुई है। सर टोटल लूट कितने लाख की हुई है जिसमें? टोटल अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कल जैसे हमारा 28 लाख तो अराउंड हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने मतलब इनके शौक भी बड़े मतलब वो है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे जो बैंक से एग्जैक्टली कितना अमाउंट लूट हुआ है और जो इनकी रिकवरी और जो उन्हें खर्चे किए उसके बाद ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो एटलाइज 50-60 लाख से तो ऊपर होगा ही कम से कम। काजल की बैकग्राउंड क्या है? काजल थोड़ा सा मतलब घर से मतलब घर वालों से मतलब उसका बनती नहीं, तो घर से निकली हुई है, और ड्रग एडिक्ट है, और जो भी लूट होती थी मतलब वो अपने जो ड्रग्स लेने में ही काफ़ी इनका खर्चा निकल जाता था, डेली का 10-12 हज़ार रुपये ड्रग्स पे ही खर्चा करते थे। 4। तो ये कितनी पढ़ी लिखी कितनी है सर? चेक कर रहे हैं। देखते हैं, बता देते हैं। तो हाई फाई रहते थे? हाई फाई रहते थे होटलों में। होटल्स में रहते थे, मॉल्स में मतलब कपड़े खरीदने, अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदने, शौक तो यही थे इनके, और यही इनका पर्पस था कि लूट करो और मैक्सिमम खर्चा करो। सर उन्होंने ये बताया कि इस काम में इसीलिए क्रिमिनल इसीलिए बने क्योंकि इजी मनी है। इजी मनी मैं आपको ही बता रहा हूँ, मतलब अपने एक तो ड्रग्स का इनका एडिक्शन था, सेकंड जो उनके खर्चे थे तो ड्रग्स कहाँ से लेते थे ये? इस पे भी वो पुलिस काम कर रही है जी? कर रहे हैं, इन्वेस्टेड कर रहे हैं फर्दर। तो काजल के दर्शन हो जाएंगे? हाँ, उनका रिमांड हमने लिया है, आपको सरकार